Today we are going to study Lensmaker's formula. आज हम Lensmaker's formula पढ़ेंगे. Lensmaker's formula आपको एक relation देती है between the focal length of a lens and the radii of curvatures. यानी आपके पास ये दो फेसेस है, एक ये है और जो ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक है that will be represented by R1 और जो दूसरा फेस ये है उसके यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेके C2 तक that's R2. So we have supposed to find a relationship between the focal length of a lens, that's a spherical lens, and the radii of curvatures R1 and R2. How we started? We started by drawing a convex lens. This method, by the way, is known as ab initio method. And I'm going to show the derivation in which I will show the complete derivation of this. Usually in the videos that you will see, you will find that they will tell you that we are deriving this thing and similarly we will obtain this. No, I'm going to show complete derivation of this thing. So ab initio method. This is also known as ab initio method. Now a ray of light is coming from O. Since it's coming from from a medium of refractive index, say mu1, to a medium of refractive index mu2, then this again mu1. A ray of light from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. And what is normal in this case? Normal is a ray that will come from the center of curvature to this point. So it was going in this direction, but then it will bend, it will go in this direction. And then it was supposed to go straight like this. It was supposed to go straight like this. That's I showed that I have shown with this dotted line. But it will bend. It will move away from the normal. What is normal? Normal is this. So it will bend away from the normal. So because it would have extended at this point, that's why I didn't bend it so much. I showed it over here. So this is the angle of incidence. This is the angle of incidence I. This is the angle of refraction R1. Then I can call this as the angle of incidence for this R2, and this is the angle of emergence, that is E. Now I have named these angles as alpha, beta, gamma, delta, eta because I am going to use that. Now clearly you can see that in this triangle, for example, if I will project it like this, in this triangle O, let's name this point as M, O, M, C1. This I is the exterior angle, and the two interior angles are alpha and gamma. So clearly I can say I is equal to alpha plus gamma. Clearly I can say I is equal to alpha plus gamma by the exterior angle property. By the exterior angle is equal to the sum of the two interior angles. Then I can say when angles are small, I can write instead of I can write sin I. And instead of alpha, I can write sin alpha or tan alpha. Since I can use tan alpha, that's why I'm using tan alpha here. It's easy to find the value of tan alpha, and that's what I do. And instead of gamma, I can write tan gamma. When angles are small, instead of angles, you can write sine of that angle or tan of that angle. ठीक है ना? कैलकुलेटर पे भी अगर आप tan of 0.002 रेट करेंगे ना, तो वो 0.002 ही आएगा लगभग. अगर आप साइन ऑफ 0.002 करेंगे ना, वो भी 0.002 ही आएगा. इसीलिए आपके पास एंगल को आप रिप्लेस किससे कर सकते हो? साइन ए से. तो अब यहाँ पे आप देखो साइन आई बराबर होगा tan alpha, that is perpendicular. Let that height be y of the triangle. ठीक है ना? वो लगभग सेम ही होगी सब में. y divided by base. अब अल्फा के लिए बेस होगी कहां से? मानो O, इसका नाम रखेंगे P. ठीक है ना? उसको मैं रखूंगा नाम OP या PO. ठीक है ना? y डिवाइड बाय PO प्लस tan गामा को मैं लिखूंगा
वही y कुछ, ठीक है ना, हाइट परपेंडिकुलर हाइट, उसमें कुछ फर्क नहीं होगी ज्यादा, तो y ही लिखूंगा मैं, डिवाइड बाय PC1, y डिवाइड बाय PC, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये है गामा, ये बराबर होगा R1 प्लस डेल्टा के। गामा किसके बराबर होगा? R1 प्लस डेल्टा के। क्यों? एक्सट्रीएंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सट्रीएंगल इसका है, इसके दो इंटरएंगल्स R1 आ गए, एक तो ये R1 आ गया और इसका क्या आ गया? गामा। क्या आ गया? ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली जो गामा है, गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा। इट इंप्लाइज R1 किसके बराबर होगा? गामा माइनस डेल्टा, गामा माइनस डेल्टा, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन R1 tan गामा माइनस tan डेल्टा, tan गामा माइनस tan डेल्टा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं साइन R1 इज इक्वल टू, व्हाट इज tan गामा? tan गामा बराबर है मेरा जगह y डिवाइडेड बाय PC1, y डिवाइडेड बाय माइनस, व्हाट इज tan डेल्टा? tan डेल्टा इज मेरी जान y डिवाइडेड बाय, लेट्स नेम इट समथिंग n, let's take something k, y divided by pn, minus y divided by pn, ठीक है। Now you know that the refractive index of medium second from Snell's law divided to the refractive index of medium first. Refractive index of medium second with respect to medium 1 is equal to sin I by sin r, sin I by sin r, यहाँ पे r की जगह r1 लिखेंगे, लेकिन ये बराबर होता है μ2 by μ1 के। μ2 किसके बराबर होता है? μ2 by, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? sin I by sin r की, ठीक। सो अगर इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो μ2 इंटू साइन R1 बराबर आ जाएगा μ1 इंटू साइन I, ठीक है ना। अब साइन R1 के बदले आप क्या लिख सकते हो? वो y by PC1 माइनस y by Pn, ठीक है। तो आप लिखोगे μ2 इंटू y by PC1 माइनस y by Pn, और μ1 तो μ1 ही हो गया, और साइन I के बदले आपने क्या लिखा मेरी जान? y by PO प्लस y by PC1, ठीक है। इसको अब सिंपलीफाई करना है, PC1 वाले टर्म्स को हम एक साइड से लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी μ2 by PC1 माइनस μ1 by PC1 इज इक्वल टू, फिर क्या हो गया? μ1 by PO, ये माइनस μ2 by Pn तक, प्लस μ2 by Pn, μ2 by, इसको आप नाम रखिए फर्स्ट, ठीक है ना। या आप फिर कॉमन भी निकाल सकते हो, वहां से 1 पे PC1 को अंदर आएगा μ2 माइनस μ1, क्या आएगा अंदर? μ2 माइनस, यानी आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, इट इंप्लाइज μ2 माइनस μ1 अंदर से आ जाएगा 1 पे PC1, ठीक हो गया, μ1 by PO प्लस μ2 by Pn, इसको आप नाम रखिए फर्स्ट, ठीक है ना। फिर वहां पे उम्मन आपको दिखाया जाता है सिमिलरली फॉर द अदर फेस, हम एक रिलेशन डालेंगे, दो को ऐड करेंगे, लेकिन बच्चों को वो रहता है कंफ्यूजन कि ये कैसे, वो दूसरी जो इक्वेशन है वो कैसे हमने निकाली, वो मेरा मेन मकसद यहाँ पे निकालना है, जो बुक्स पे भी नहीं लिखा होता है, जो आपके पास जो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं उसमें भी वो नहीं लिखा होता है। अब देखिए उसके लिए क्या करना है आपको, जो आपके पास ये E है, जो E है, E किसके बराबर है? E है एक्सटेंड, ठीक है ना, ये जा रहा है, बेंड हो रहा है यहाँ से, ठीक है,
जो ई है वो बराबर होगा बीटा प्लस नीटा के। ई किसके बराबर होगा? बीटा प्लस नीटा के। ई बराबर है बीटा प्लस एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। तो क्लियरली ई बराबर है बीटा प्लस नीटा। किसके बराबर है? बीटा प्लस नीटा। तो आप लिखेंगे साइन ई किसके बराबर है? साइन बीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, टैन बीटा, टैन बीटा प्लस टैन नीटा। तो साइन ई किसके बराबर है? टैन बीटा किसके बराबर होगा? टैन बीटा बराबर होगा ऑब्वियसली यहां पे ट्राई y बाई pc2, y बाई pc2, ठीक है ना, y बाई pc2। और टैन नीटा बराबर होगा y बाई pk प्लस y बाई pk, ठीक है ना। अब मुझे R2 चाहिए, R2 है यहाँ पे। अब ये R2 जो यहाँ पे है, अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे C2, इसका कुछ नाम मैं रखूंगा। क्या नाम रखूंगा? कोई भी अल्फाबेट बताइए जो आपको पसंद हो। क्या मैं बताऊं? G, C2GN, C2GN में, ठीक है ना, ये जो R2 है ये एक्स ट्रायंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये एक्स ट्रायंगल है, तो ये बराबर है बीटा प्लस डेल्टा के। सिमिलरली R2 बराबर किसके है? बीटा प्लस डेल्टा के। R2 महाशय बराबर है बीटा प्लस डेल्टा के, क्योंकि ये एक ट्रायंगल ऐसे है, ये ऐसे लाइन है, एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हुआ साइन R2 किसके बराबर है? टैन बीटा प्लस टैन डेल्टा। इसका मतलब है साइन R2 किसके बराबर होगा? टैन बीटा किसके बराबर होगा? y बाई pc2, y बाई pc2 प्लस टैन डेल्टा किसके बराबर होगा? y बाई pn। तो फिर मैं अगेन करूंगा, कौन सा रो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, वो बराबर होगा साइन R2 बाई साइन ई। अब ये तो लेकिन बराबर है μ1 बाई μ2 के, और जैसे बराबर था μ2 बाई μ1 के, क्योंकि बाई प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी μ21 बराबर होता है 1 बाई μ12। हाँ, अब साइन R2 के बदले क्या लिखूंगा मैं? y बाई pc2 प्लस y बाई pn, ठीक है ना, होल डिवाइड में साइन ई के बदले y बाई pc2 प्लस y बाई pk। अभी यहां जाएगा, बढ़ा भी सकते हैं, y1 इंटू y बाई pc2 प्लस y बाई pk इज इक्वल टू μ2 इंटू y बाई pc2 प्लस y बाई pn, ठीक है। y बाई कैंसिल हो जाएगा, so it will be μ1 बाई pc2 प्लस μ1 बाई pk, μ2 बाई pc2 प्लस μ2 बाई pn, ठीक है। अब pc2 वाले टर्म्स एक साइड से लाएंगे, या μ2 माइनस μ1 ताकि उस ऑर्डर में आ जाए, तो इसको यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा μ1 बाई pk माइनस μ2 बाई pn इज इक्वल टू μ2 बाई pc2 माइनस μ1 बाई pc2। तो इसका मतलब है मैं ऐसे लिख सकूंगा, अब इसको यहाँ से लिखूंगा μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई pc2, ये साइड्स को शिफ्ट किया, उसके बाद 1 बाई pc2 को कॉमन निकालो, और यहाँ पे आएगा μ1 बाई pk माइनस μ2 बाई pn, इसको नाम रखेंगे सेकंड। ये आपको वहां पे दिखाया जाता है सिमिलरली, जो मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिराइव करके दिखाया। अब क्या करना है आपको? एडिंग ए एंड बी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, we get एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन तो निकलेगा कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 बाई पी सी वन प्लस 1 बाई पी सी टू। अब यहाँ पे है माइनस म्यू टू बाई पी एन, वहां पे प्लस म्यू टू बाई पी एन, ये क्या हो जाएगा कैंसल, वहां पे आ जाएगा म्यू वन बाई पी ओ प्लस म्यू वन बाई पी के। अब म्यू वन क्या निकलेगा मेरे जान कॉमन, वो आ जाएगा वहां पे डिवाइड में, वो बन जाएगा वहां पे म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, अंदर क्या रहेगा 1 बाई पी सी वन प्लस 1 बाई पी सी टू, ठीक है ना, म्यू वन मिल ले 1 बाई पी ओ प्लस 1 बाई, ठीक है ना, म्यू टू बाई म्यू वन किसके बराबर है, म्यू टू 1 के माइनस 1 बाई पी सी वन वो हो गया आर वन, 1 बाई आर वन, उसको पॉजिटिव माइनस 1 बाई, क्योंकि इस वाले को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये बराबर आ जाएगा 1 बाई पी ओ, वो किसके बराबर है u के, दैट इज 1 बाई माइनस u प्लस 1 बाई, ठीक है। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, फिर म्यू टू 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई, अब है ना ये यहाँ पे when the object is infinity image, when the object is infinity image कहाँ पे बनती है फोकस पे, तो इसका मतलब I can write mu to 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 is equal to 1 by, this is what we call as Lensmaker's formula, in which a relation is found between the focal length, refractive index एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं देखेंगे जहाँ पे पूरी तरह आपको ये सारा दिखा के, ये सिर्फ YouTube पे आप देखेंगे, हमारे इस वीडियो में ये सारा डेरिवेशन है।